Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah. ہم خداوند کا شکر گزار ہیں جو خدا ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخش دیتے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں، اور جو خدا ہم سے اپنا کام لیتے ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں جو ہم اس کے گواہ ہیں، جو ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہماری خاطر، وہ خدا جس نے ہماری خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ تو میں عزیزوں آپ کے ساتھ بہت خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایک دن کی ہے، ایک گھنٹے کی ہے، کچھ پل کی ہے، ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تیار کریں، ہر وقت اپنے آپ کو تیاری میں رکھیں، تاکہ جب بھی ہمارا وقت آئے تو ہم اسی وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جا سکیں۔ تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، عقل، دانائی اور حکمت دے، اور بڑی کثرت کی برکتیں دے، تاکہ آپ کی ضرورتیں، آپ کے گھرانوں کی ضرورتیں یسوع مسیح کے نام سے پوری ہوں۔ تو عزیزوں خداوند آپ کو عقل، دانائی دیں، اور میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں پرے کے لیے۔ جب میں ان کے لیے پرے کرتا ہوں تو ان کی بہت ساری کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ مشکلوں کا جو شکار ہے، ہمارے گھر سے مشکلیں نکلیں، ہمیں خوف آتا ہے، ہمارے بچے وفادار نہیں ہیں۔ تو عزیزوں خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ جب آپ اپنے گھر کے اندر دعا کریں گے، تو جب آپ اپنے گھر کے اندر بائبل اسٹڈی کریں گے، تو کبھی بھی کوئی بھی ابلیس کی گندی تصویریں، اس کے موکل بھی آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتے۔ وہ یوں کہ جب بھی شیطان کی کوئی چیزیں آپ کے گھر میں ہوں گی تو وہ ان چیزوں کے پیچھے ضرور آئے گا۔ جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کے اندر کچھ گالی گلوچ کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کے اندر لڑائی کرتے ہیں، غصے کی بدرو، یہ سارے کام جو ہیں یہ ہمارے اندر جو تکبر، گھمنڈ، جیلس، ایک دوسرے کو دیکھ کر جیلس فیل ہونا، یہ ساری کی ساری ابلیس کی چیزیں ہیں۔ جب ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، جب ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ ابلیس کی طرف سے، وہ جب ہم خدا کو چھوڑتے ہیں، تو جب ہم ابلیس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمیں وہ گفٹ دیتا ہے کہ وہ چیزیں اس کی ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ ابلیس کو، شیطان کو چھوڑیں، اس کے ساتھ رہنے سے ہم زندگی نہیں پا سکتے، بلکہ ہم یسوع مسیح کو جب اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے گھر آنے سے، خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں جب آ جاتے ہیں، تو ہمارے گھر جو ہیں وہ بابرکت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر سے مشکلیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، دکھ تکلیفیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے آپ وفادار ہوں گے اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خدا باپ کے ساتھ، تو اسی طرح آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وفادار ہو جائے گی۔ جب آپ وفادار نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں دعا نہیں کرتے، تو آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے دعا نہیں کرتے، جو دنیا دار کے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ سرگٹ پینی شروع کر دیتے ہیں، نسوار رکھنی شروع کر دیتے ہیں، عجیب سا نشہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے بچے آپ کو کاپی کریں گے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کے بچے آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے وفادار ہو جائیں گے۔ آپ آج کل کے دور میں بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے ڈرتے ہیں۔ تو گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ آپ کے گھر کے اندر جو برکتیں ہیں، وہ برکتیں بھی آہستہ آہستہ وہ ساری برکتیں آپ کے گھر سے نکلتی جائیں گی۔ تو عزیزو خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ میں آپ کو پنجاب کی بات بتاتا ہوں کہ ایک گاؤں میں گیا خدمت کے لیے، تو مجھے ان لوگوں نے بلایا اپنے گھر میں کہ جی ہمارے گھر میں آئیں دعا کریں۔ میں گیا دعا کے لیے، تو جب میں ان کے گھر میں گیا، بیٹھے، انہوں نے پانی پلایا، ساتھ ہی انہوں نے چائے تیار کر لی، چائے جی، اور ساتھ ہی جو خدمت کر سکتے تھے انہوں نے لائے، آپ چائے پی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پہلے بات بتائیں، بات کیا ہے؟
जब उन्होंने मेरे साथ वो बात शेयर की कि जी हमारी बहू है, तो उसके साथ ये कुछ अजीब सी हरकतें होती हैं कि वो जो है बाइबल पढ़ते हुए जो है वो गिर जाती हैं, वो दुआ नहीं कर सकती और उससे जो है दौरे पड़ते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि बाइबल पढ़ते हुए कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कहा आप लोग अपनी असल जगह पर नहीं हो। मैंने बहुत ज़्यादा मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मेरे पास लाएं उसे, हालांकि उनके घर में बैठा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं खुदा का खादम होते हुए मैं आपको कहता हूँ कि उससे मेरे पास लाएं, और मैं ईमान रखता हूँ और यकीन रखता हूँ क्योंकि मैं जिसके नाम से आया हूँ वो मेरे साथ खड़ा है। तो मैंने उनको बड़ा ईमान उनका मजबूत करने की कोशिश की, और मैंने उनको कहा कि मैंने कहा उस बच्ची को, उस बेटी को मेरे पास लाओ और देखो कि अभी यीशु मसीह के नाम से बड़ा मौजज़ा होगा। बहुत कुछ मैंने उनको कहा, बहुत दफ़ा कहा, लेकिन वो उस बच्ची को मेरे पास नहीं लाए। मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? नहीं अभी वो काफ़ी बेहतर है। और वो लड़का कहता है मैंने 4 महीने दुआ की है, 4 महीने मैंने दुआ की, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मेरी बीवी ठीक नहीं हुई। मैंने कहा तूने 4 महीने तूने दुआ की और तुझे जवाब नहीं आया? मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तजर्बा है कि जब हम दिल से उसकी हजूरी में 2 दिन भी उसकी हजूरी में अपने आप को, अपनी सोच को, ख्यालों को, पूरे को, दुनियादारी को छोड़कर हम पूरे दिल से, रूह से जब हम उसकी हजूरी में झुक जाते हैं ना, तो जब हम अपने आप को सिलेंडर करते हैं तो वो खुदा हमारा ज़िंदा खुदा है, वो हमारी दुआ का जवाब देता है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे जवाब नहीं मिला? तो मैंने कहा फिर क्या किया? कहता है जी मैंने इतनी दुआएं की, उसके बाद जी मैं किसी सियाने के पास ले गया, किसी के पास लेके गया, तो वो जो है उसके बाद ठीक है। मैंने कहा उसने कुछ तुझे गिफ्ट भी दिया होगा? तो कहते जी हाँ वो उसने कोई तावीज़ वगैरह दिया। तो मैंने कहा ईमान रख, और मैं कहता हूँ कि तू उससे अभी इसी वक्त, कहता है अभी कुछ बेहतर है, ठीक है। मैंने कहा मैं उससे पूरे का पूरा उससे ठीक करूँगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में कुव्वत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है, और यीशु मसीह के नाम में शिफा है। उस लड़की को मेरे सामने ला और देख, अभी यीशु मसीह का मौजज़ा देखेगा और अभी इसी वक्त वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं जी नहीं, वो ऐसे। मैंने कहा अगर आप लोग यीशु को वेलकम नहीं करते हो, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में नहीं आने की दावत दोगे, तो आपने मुझे कैसे बुला लिया? मैंने उसी वक्त उस जगह पर मैंने कहा मैं तो आपके घर के अंदर पानी, चाहे तो आप दूर की बात है, मैं तो आपके घर का पानी भी नहीं पी सकता, इसलिए कि मैं यीशु का हूँ। जो लोग यीशु को कबूल नहीं करते, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उनके साथ कोई बात नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हम यीशु के हैं। अगर हमने सलीब उठाई है तो वो जो हमने सलीब उठाई है, जो हम काम कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का है। तो जब यीशु को कोई लोग कबूल नहीं करते तो हम उनके घर में कैसे जा सकते हैं? तो बहुत सारी उन्होंने आवाज़ें दी। फिर बाद में फ़ोन किए कि जी हमारे घर में इस तरीके से हालात लोग खुद अपने ख़राब करते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, सियाणों के पास जाते हैं जी, हम वो अपने घर, अपने कारोबार, अपनी ज़रूरतों के पीछे। क्या हमारा ज़िंदा खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता? क्या हमारा खुदा हमारी सुनता नहीं है? मैं गवाही देता हूँ कि खुदा हमारी सुनता भी है, उसका जवाब भी देता है, और खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है। खुदा यहाँ तक कि ज़रूरतें नहीं, बल्कि खुदा हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करता है। क्यों? कि मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौजज़ात हुए कि मैंने जो कुछ खुदा से मांगा, खुदा ने मेरी ज़रूरतें, मेरी ख्वाहिशें भी पूरी की। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। एक दफ़ा
دل سے रूह से उसकी हजूरी में आ जाओ और फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होने शुरू हो जाएंगे। और मैं ईमान से कहता हूँ अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात नहीं हुए, अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई अजीब काम नहीं हुए, तो मैं कहता हूँ कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। और कभी भी अगर आपके घर में कोई बीमारी आ गई, अगर आपके घर में कोई जादू तवीज़, डर लगता है, कुछ भी होता है, तो मैं आपको कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से उसे डांटो, फिर मोजज़ात देखो। अगर कोई भी राह नज़र नहीं आता तो मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल करो, मैं आपके लिए प्रे करूँगा और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे अजीब मोजज़ात होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, पर मेरे यीशु के अंदर काबिलियत है। मेरे यीशु के अंदर वो काबिलियत, मेरे यीशु के अंदर वो पावर है, जो वो पावर जब उनकी ज़िंदगी में जाती है, उनकी ज़िंदगी में वो पावर काम करती है और उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात होने शुरू हो जाएंगे। खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरा नंबर जो है वो 0300690761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा यही नंबर है। और कभी भी 24 घंटे कभी भी आपको दुआ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो, मुझसे प्रे करवा सकते हो। आप खुद भी दुआ में ठहरो और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे अजीब काम होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और खुदावन आपके साथ रहे, आपके घरानों को और आपको खुदा कसरत की बरकत दे और हर एक मुश्किल परेशानियों से खुदा आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम से। और आपकी ज़िंदगियों में अगर कोई बंधन है तो वो यीशु के नाम से अभी इसी वक्त हर एक बंधन टूटता हुआ नजर आए। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, अगर कोई बीमार इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है तो उसकी बीमारी यीशु के नाम से उसके बदन से जाती रहे। कैसी भी बीमारी है, अगर कोई लंगड़ा है, अगर कोई अंधा है तो लंगड़ा चलना शुरू हो यीशु के नाम से, अंधा देखना शुरू हो यीशु के नाम से। अगर कोई बीमार है, कोई शुगर है, यीशु के नाम से उसके बदन से हर एक शुगर यीशु के नाम से जाती रहे, उसकी शुगर नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। कैंसर जैसी गंदी बीमारी उसके बदन से जाए, थायराइड जैसी बीमारी उसके गले से जाए यीशु के नाम से। और खुदावन उसके बदन के अंदर खुदावन और भी कोई भी गंदी बीमारियां हैं तो यीशु के नाम से जाती रहें। अंधे देखें, मुर्दे जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से। और हमारा यीशु जो है अगर बड़े तूफान भी आ जाएं तो मेरा यीशु जब खड़ा हो जाएगा तो यीशु के नाम से तूफान रुक जाएंगे, पहाड़ जो है अपनी जगह छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम होगा। अगर इस वक्त अगर कोई भी बहन जो बांझ है यीशु के नाम से देख रही है तो वो औलाद वाली हो यीशु के नाम से और बड़ी गवाही हो यीशु नासरी के नाम से। अगर कोई जोड़ों के दर्द है तो वो यीशु के नाम से जोड़ों के दर्द अभी इसी वक्त उसके हर एक बदन से जोड़ से दर्द जाए यीशु के नाम से। और खुदा आपका जलाल ज़ाहिर हो, आपका जलाल ज़ाहिर हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। उस लहू को जो सलीब पर बहाया गया, उस लहू को जो सलीब पर बहाया गया, जो हमारी खातर बहाया गया, मेरी खातर, तेरी खातर, यीशु के नाम से जो वो लहू जो सलीब पर बहाया गया, उस लहू को अभी इसी वक्त आपकी जिंदगियों पर मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके घरानों पर मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उस लहू को जो सलीब पर बहाया गया, जो हमारी रहाई बन गया, जो हमारी निजात बन गया यीशु के नाम से, उसी लहू को आपकी जिंदगियों पर मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर इस वक्त कोई भी बेरोजगार है यीशु के नाम से उसका रोजगार चलना शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। और खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से अगर कोई किसी कारोबार में, अगर किसी ने कोई कारोबार स्टार्ट किया है तो उसका कारोबार अभी से ही जो डॉन है तो यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त उसका कारोबार चमकना शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई परेशान है उनकी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावन आपका जलाल ज़ाहिर हो। खुदा छू ब्लेस कर और बड़ी बरकत देना, हर एक जिंदगी
कसरत की बरकत पाए, और खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से ये लोग जो देख रहे हैं वो खुदावन आपके गवाह ठहरें, और यीशु मसीह के नाम से खुदावन पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड में आपके गवाह ठहरे और आपका ऐलान करने वाले बन जाएं, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन।